Hello everyone, welcome to Rosaian. Today in this lecture we'll be talking about IUPAC nomenclature. So starting with this, we need to understand the first of all word nomenclature. Nomenclature का मतलब क्या होता है? Nomenclature is basically a process. This word इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है. Nomenclature दरअसल it's a process of assigning proper name to a particular organic compound. ठीक है, on the basis of certain standard rules. So it is all about assigning names on the basis of certain standard rules. So why we are doing this? So that we can do systematic study of our organic compounds, so that we can have we can easily name those organic compounds in an easier manner. Now this nomenclature is basically classified in two ways. One is trivial system and another is IUPAC system. This tribal system is also called as common names. Now, these common names or tribal names are basically derived from the source from which they are obtained. Like if I talk about urea, the word urea is derived from the word urine that is found in the that is obtained from the mammals. ठीक है. Now, methyl alcohol. मिथाइल अल्कोहल का जो कॉमन नेम है, मिथाइल अल्कोहल का जो कॉमन नेम होगा दैट विल बी वुड स्पिरिट. ओके, वुड स्पिरिट क्यों रखा गया है? बिकॉज it will be obtained as one of the product during destructive distillation of wood. Now again, formic acid. Formic acid is found in ants, and in Greek way it is ants are called formiceous. So red ants especially formiceous जो है वो red ants को बोलते हैं. ठीक है, फॉर्मिकस बोल दीजिए, फॉर्मिशियस बोल दीजिए, प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं इसका कैसा होता है. तो बेसिकली रेड एंड्स को हम ग्रीक वे में ये बोलते हैं, तो वहीं से फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक शब्द ड्राइव हुआ है. ठीक है, इजी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो नाम है वो हम कॉमन नेम्स जो हैं यहाँ पे ये सारे के सारे सोर्स बेस्ड हैं. ठीक है, सो इस तरह से हर एक दे आर एन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर एन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो सभी का हम कॉमन मेथड से कॉमन नेमिंग ट्रैवल सिस्टम से नेमिंग नहीं कर पाएंगे और याद भी नहीं कर पाएंगे. अगर हम कर भी लेंगे तो हम याद नहीं कर सकते. तो देयर इज अ नीड ऑफ certain systematic rational method of naming of compound, and for that International Congress of Chemists was held in Geneva in 1892. तो 1892 में आपका IUPAC सिस्टम के लिए 1892 में जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई. ठीक है, केमिस्ट सारे केमिस्ट द्वारा, इंटरनेशनल केमिस्ट द्वारा. तो दे हैव adopted certain uniform rules for naming of this compound. This system of IUPAC nomenclature system is also named as Geneva system. आपको पता है Geneva system क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये Geneva में ही अप्रूव हुआ था. ठीक है, तो this particular IUPAC system is improved from time to time. ठीक है, now IUPAC का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए. International Union of Pure and Applied Chemistry. ठीक है, सो दिस इज योर IUPAC सिस्टम. नाउ ये जो आपका IUPAC सिस्टम है, दिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1947. ठीक है, पहली बार विद सर्टेन रूल्स ये 1947 इंट्रोड्यूस हुआ, फिर मॉडिफाई होता रहा ये टाइम टू टाइम. ठीक है, देन इससे ज़्यादा एग्जॉस्टिक रूल कब आए? 1979 में आए, and this was further updated from time to time, and again it was better updated in 1993. ठीक है, there are books which follow 1979 method recommendations of IUPAC.
हम कोशिश करेंगे जो भी अब हमारा लेटेस्ट अपडेटेड मेथड्स हैं हम उन्हें डिस्कस करें, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर हम नोमेनक्लेचर हैं वो हम लेटेस्ट वाले पढ़ें। आई होप आपको ये समझ में आया। अब देखिए आईयूपीएसी सिस्टम को स्टडी करने से पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी के द्वारा नाम कैसे लिखा जाता है वो समझने से पहले हमें आईयूपीएसी सिस्टम द्वारा लिखे जाने वाले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है उसके स्केलेटन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू आर अवेयर ऑफ स्केलेटन ऑफ योर आईयूपीएसी nomenclature, then very easily you can understand any name of any organic compound. So your IUPAC name of any organic compound contain majorly three parts. First is prefix, then word root, and then suffix. Now this prefix is also further divided as secondary prefix, and primary prefix. Word root में as such there is no classification, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं सफिक्स की तो सफिक्स इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड एज प्राइमरी सफिक्स एंड secondary suffix. So before understanding these things, first of all, we need to have idea about कि prefix, suffix, word root ये है क्या। अगर हमें ये समझ में आ गया तो हम किसी भी आईयूपीएसी नेम को लिख पाएंगे वेरी इजीली। तो हम एक एक करके चीजों को समझेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ वर्ड रूट को। सबसे पहले हमारा जो फोकस जो रहने वाला है वो है वर्ड रूट के ऊपर। वर्ड रूट क्या है? What is word root? Word root denotes the number of carbon atom present in the main chain. Remember this thing? Number of carbon atom present in main chain. Okay. So I said कि जो भी आपका मेन चेन बनने वाला है, ठीक है, मेन चेन ये टर्म मैं फर्दर बात करूंगा, जो भी आप चेन चूज करेंगे, ठीक है, कैसे क्या होता है अभी वी विल कीप अ होल्ड ऑन दिस। आप बस समझ लीजिए जो भी आपके आप जो जब भी काउंटिंग करोगे कार्बन की, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चेन में जितने कार्बन आप काउंट करेंगे वहां पे जितने भी कार्बन आटम प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है वर्ड रूट। तो अगर एक प्रेजेंट है कार्बन तो वर्ड यूज करोगे मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रॉप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, ठीक है। अब समटाइम्स व्हाट हैपन कि हम एक्स्ट्रा ए भी यूज करते हैं हमारे वर्ड रूट्स के बाद, ठीक है, whenever some मल्टीपल डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स आर देयर, ठीक है। तो कैसे इसको यूज होगा, ये ए एक्स्ट्रा कब, ये मैं ये जो कह रहा हूँ ये ए यहाँ पे कब आने वाला है मैं आपको बताऊंगा, याद रखिएगा। एथ में नहीं आएगा, मैथ में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल बस आपको ये समझना है कि कई बार ए भी एक्स्ट्रा आ जाता है, वो कैसे आता है वी विल लर्न ऑन इट। 6 कार्बन प्रेजेंट हो तो हेक्स होगा, कई बार हेक्सा भी होता है, ए भी यूज होता है। 7 प्रेजेंट हो तो हेप्ट होता है, ठीक है। अगेन ए को ऑप्शनली हम यूज कर सकते हैं कुछ केसेस में, वो केसेस क्या हैं हम बात करेंगे। 8 हो तो ऑक्ट यूज करते हैं, 9 हो तो नॉन यूज करते हैं, 10 कार्बन आइटम प्रेजेंट हो तो
डेक यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी 10 की। अब मैं अगर बात करूं, अगर 11 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो हम यूज करेंगे अनडेक। 2 प्रेजेंट हो तो डू डेक। 3 प्रेजेंट होते, सॉरी 13 प्रेजेंट हो तो आई सेड 2 बोला है मैंने, तो ये 12 करेक्ट कर लीजिएगा इसको। 13 हो तो ट्राई डेक। ठीक है, सिमिलरली चलता रहेगा ये। अगर 20 हो तो 20 कार्बन आइटम, तो आप क्या बोलोगे इसको? आइकोस, अरे वर्ड यूज करोगे आइकोस। सिमिलरली 30 कार्बन आइटम हो तो ट्रायाकॉन्ट। तो जनरली इतने तक आपको याद आने चाहिए, ये सारे आपको याद आने चाहिए, एंड दे आर वेरी मच बेनिफिशियल अगर आपको ये याद है तो ये आपके वर्ड रूट है, समझिएगा। आईयूपीएसी नेम लिखते वक्त कंपाउंड का स्केलेटन पढ़ रहे हैं हम। जब मैं स्केलेटन बोलता हूँ ना, तो आप इसको इस तरह से समझिए कि आपके पास एक बाइक है। एक बाइक में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके पास उसमें हैंडल है, मोटर है, उसमें पहिए हैं, देन उसका इंजन है, उसका पेट्रोल टैंक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उस बाइक के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिखा रहा हूँ आप सभी को। फिर हम इनको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे मैंने आपको इस स्लाइड में आपको दिखा दिया है। ठीक है, कैसे जोड़ने वाले हैं। तो ये कैसे हो जाएगा? पहले तो आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आएगा वर्ड रूट, फिर काउंट होगा प्राइमरी सफिक्स, फिर काउंट होगा सेकेंडरी सफिक्स। तो ये सारी चीज़ें मिल करके आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को रिप्रेजेंट करती है और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देती है। तो अभी हम एक एक करके सभी पार्ट को समझ रहे हैं। अभी हमने वर्ड रूट समझा, बिकॉज मेन चेन में, अगर मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन आटम इतने इतने होंगे, तो हम इस तरह से इनकी नेमिंग करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? सेकंड पार्ट है हमारा प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट द नेचर ऑफ लिंकेज इन कार्बन आटम। समझिएगा, इट इंडिकेट्स nature of linkage of carbon atoms. When I say this, ये रिप्रेजेंट करता है नेचर ऑफ लिंकेज। तो यहाँ पे दरअसल ये बताने वाला है कि आपका जो कार्बन है उसके में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है सभी कार्बन आटम्स में, तो आप सफिक्स प्राइमरी सफिक्स यूज करते हो एन। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप यूज करते हो इन। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो आप यूज करते हो आइन। ठीक है, कुछ टीचर्स वाइन बोल देते हैं, मैं आइन बोलता हूँ। जैसा आप कंफर्टेबल हो आप यूज करिए, वैसे इसको आइन बोलते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई बार एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं और एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब मान लो 2 डबल बॉन्ड हो जाए, तो अब क्या यूज करोगे? डाई। 3 हो तो ट्राई, 4 हो टेट्रा, तो क्या बन जाएगा? डाइन, ट्राइन, टेट्राइन। ठीक है, इस तरह चलने वाला, सेम विद दिस डाइआइन, ट्राइआइन, टेट्राइन। अब आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई और आप इसको याद रखने वाले हैं कि प्राइमरी सफिक्स रिप्रेजेंट योर nature of linkage of carbon atoms. It tells about whether a compound is saturated or not, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा बनता है सी पार्ट, दैट इज सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में दरअसल हम फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इंडिकेट्स
functional group present in ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये वो रिप्रेजेंट करता है। अब फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन सा हो सकता है, तो दे आर मेनी नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और हमें पता भी होना चाहिए। तो मैं आपको बहुत तरह के फंक्शनल ग्रुप बताने वाला हूँ, ऑलमोस्ट 30 बताऊंगा ऑन प्रायोरिटी बेसिस। ठीक है, तो मैं जब फंक्शन ग्रुप बताते जाऊंगा तो उसके साथ उसकी प्रायोरिटी भी लिखते जाऊंगा। ठीक है, तो पहला फंक्शनल ग्रुप यानी कि टॉप मोस्ट फंक्शनल ग्रुप जो आप पढ़ने वाले हो वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इसकी प्रायोरिटी 1 है। ठीक है, नेमिंग करते वक्त इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। कैसे प्रायोरिटी ज्यादा होती है वो भी आपको समझ में आएगा। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो जब भी ये आपके हाइड्रोकार्बन से अटैच होता है तो ये बेसिकली ये वाला पार्ट जो है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, COOH ग्रुप। ठीक है, तो मैं सिंपल अगर इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो आपको बस समझ जाना है कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये किसी भी हाइड्रोकार्बन से या किसी भी तरह के ग्रुप से अटैच हो सकता है। ठीक है, सेकेंड इज सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक एसिड का ग्रुप क्या होता है, ये होता है SO3H। थर्ड इज एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का ग्रुप क्या होता है, दिस इज द ग्रुप ऑफ एनहाइड्राइड। फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप होगा वो होगा एस्टर। ठीक है, अब एस्टर का स्ट्रक्चर, दो हाइड्रोकार्बन से ये वाला ग्रुप अटैच होता है, तो इस वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एस्टर ग्रुप। फिफ्थ प्रायोरिटी में जो होगा दैट विल बी एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का जो फॉर्मूला है दैट विल बी RCOX। ठीक है, तो ये जो है ना ग्रुप, ये है आपका एसिड हैलाइड, ये जो X है दैट इज हेलोजन। ठीक है, सिक्स प्रायोरिटी जो आती है वो होती है अमाइड की। ठीक है, अब अमाइड में जो ग्रुप अटैच होता है आपके हाइड्रोकार्बन से दैट इज दिस ग्रुप, CONS2 ग्रुप। दिस ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, दिस इज द अमाइड ग्रुप। सेवेंथ की बात करूं, सेवेंथ इज सियानाइड। सियानाइड में ये ग्रुप अटैच होता है, CN ग्रुप। एट्थ प्रायोरिटी पे आता है आपका आइसोसियानाइड, जहां पे आपका NC ग्रुप होता है अटैच। देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन से नाइट्रोजन अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन से कार्बन अटैच है। नाइन्थ की बात करूं मैं, किसी बच्चे ने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके स्क्रीन स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अल्डिहाइड इज एट नाइन्थ पोजीशन। यहाँ पे जो ग्रुप होता है वो दरअसल COH ग्रुप होता है। ठीक है, इस ग्रुप को हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, और दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप विच इज गोइंग टू डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर हाइड्रोकार्बन। टेंथ की बात करूं तो वो होता है कीटोन। कीटोन में दिस ग्रुप CO ग्रुप इज अटैच्ड टू 2 हाइड्रोकार्बन पार्ट। 11th पोजीशन की बात करूं तो वो होता है अल्कोहल। तो अल्कोहल में OH ग्रुप अटैच होता है आपके हाइड्रोकार्बन से। 12th की बात करूं तो वो होता है थायोल। थायोल पे SS ग्रुप अटैच होता है आपके हाइड्रोकार्बन से। 13 पे आता है अमाइन। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये सारे समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर समझ में आ रहा है, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो and subscribe my channel too. So
13 पे आपका आता है अमाइड। तो ये सारे आपने जो पढ़े हैं वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप। और आप सभी ने 10th में ही पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम, इट इज एन एटम or group of atom which decides entire property, or you can say physical chemical both property of organic compound. To be more precise, पूरी केमिकल प्रॉपर्टी दरअसल ये फंक्शनल ग्रुप ही जज कर लेगा। तो मीथेन में और मिथेनॉल में बहुत अंतर होता है, ठीक है। और इसमें जो डिफरेंस क्रिएट करने वाला है वो है आपका OH ग्रुप। दिस OH ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग डिफरेंसेस। याद रखना है आप सभी को ये चीज। So this is your functional group and this is your secondary prefix, ठीक है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अब जो हमारे पास है वो है, सॉरी आई सेड सेकेंडरी प्रीफिक्स, दैट इज सेकेंडरी सफिक्स। अगर मैंने मिस आउट कर दिया हो, यस, सेकेंडरी सफिक्स है वो। अब हम बात करने वाले हैं प्राइमरी प्रीफिक्स की। प्राइमरी प्रीफिक्स ये बताता है कि आपका कंपाउंड साइक्लिक तो नहीं है, ठीक है। अगर आपके कंपाउंड्स में रिंग फॉर्मेशन हो रही है, ऐसी ऐसी या ऐसी, जिसको ये नहीं पता ये लाइन शेप कैसे बनते हैं, आप प्रीवियस वीडियोस में देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जब भी रिंग फॉर्मेशन होती है ना, तो प्राइमरी प्रीफिक्स जो हम यूज़ करते हैं वो होता है साइक्लो, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम साइक्लो ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। तो दरअसल ये वर्ड साइक्लो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स को आसान भाषा में बोलूं तो दरअसल मैं बात कर रहा हूं सब्स्टिट्यूएंट्स की, ठीक है। सो योर सब्स्टिट्यूएंट्स आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट्स सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं, यानी कि अगर आपके ऐसा कोई ग्रुप है या ग्रुप ऑफ एटम है जो मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा है, तो उसी को हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में काउंट करते हैं, ठीक है। तो मान लो आपका फ्लोरीन है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लोरो। क्लोरीन है तो हम यूज़ करते हैं क्लोरो। ब्रोमीन है तो हम यूज़ करते हैं ब्रोमो। आयोडीन है तो हम यूज़ करते हैं आयोडो। नाइट्रो ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं। अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है NH2, दिस विल बी अमीनो ग्रुप, ये वही वर्ड यूज़ करते हैं। NO के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, नाइट्रोसो यूज़ करते हैं। दिस इज योर डायज़ो ग्रुप, ठीक है। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट हो OCH3 तो हम यूज़ करते हैं मिथॉक्सी, ठीक है। और अगर ये ग्रुप प्रेजेंट हो OC2H5 तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम इसको बोलते हैं इथॉक्सी, ठीक है। अगर OH प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सो। वैसे जब हम हमारे फंक्शनल ग्रुप व्हेन दे बिहेव एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो उस केस में हम, या फिर फंक्शनल ग्रुप बिहेव जब नहीं करते हैं, तब उनके लिए हम क्या नाम यूज़ करते हैं, हम इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने एक ही फंक्शनल ग्रुप लिया है, तो उसमें मैंने सीखा कि OH को मैं हाइड्रोक्सो ग्रुप कह सकता हूँ,
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसमें अगर अल्काइल ग्रुप आ जाए जैसे कि CH3, तो इसका हम क्या यूज़ करेंगे, मिथाइल। C2H5, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, मिथाइल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अल्केन में जो अल्केन का जो ANE पार्ट था, जब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो वो बन जाएगा अल्काइल। ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है आप सभी को, एंड थिंग्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। तो दिस इज योर स्केलेटन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपको ये जो 5 चीज़ हमने समझी हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया है, तो अब आपको किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का जो जब हम नाम लिखेंगे, जब हम टर्म्स यूज़ करेंगे ये सारे, तो आपको कंफर्ट फील होगा। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम बेसिक हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग स्टार्ट करेंगे पहले, सो दैट यू फील कंफर्टेबल ऑन दैट। यू डोंट फाइंड इट कि थोड़ा सा ये लंबा हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है। यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग इन फैक्ट। तो मुझे एक बात समझ में आई कि जो आपका वर्ड रूट है दैट टेल्स यू अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम। प्राइमरी सफिक्स टेल्स अबाउट कंपाउंड सैचुरेटेड है या नहीं, एन आएगा, इन आएगा, आयन आएगा। सेकेंडरी सफिक्स बताता है अबाउट फंक्शनल ग्रुप विच इज प्रेजेंट। प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं, साइक्लिक है या नहीं है। सेकेंडरी प्रीफिक्स आपको बताता है सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, यानी कि जो लेफ्ट आउट है उसकी इंफॉर्मेशन आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स देता है। इन सभी को आप जब जोड़ देते हो तो आप उन्हें बोलते हो कि आपके IUPAC नोमेनक्लेचर का ये नाम हो गया। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर आप सभी को अभी तक क्लियर है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सभी बेसिक रूल्स सीखने वाले हैं, उसके साथ साथ फिर हम कंपाउंड की नेमिंग भी सीखेंगे। If you like this video, give it a like button, like thumbs up. Do share with your friends. Do subscribe my channel. Thank you so much for watching this lecture.